वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। संस्कृत क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत न्यूमरल्स का मतलब संख्यावाचक शब्द का ऑर्डिनल्स जो पार्ट है वो वाला आज हम पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑर्डिनल्स एंड you should remember that ordinals start from number 2. आप लोगों को ये याद रखना है कि ऑर्डिनल्स 2 नंबर से स्टार्ट होता है। Then let's have a look at the board. Look here, number in words and then ordinals, then 3 genders. You know there are 3 types of genders in Sanskrit, that is masculine, feminine and neuter gender. Okay, and we will learn this way. First, start with number 2. Number 2, it's in Sanskrit dvi, and it is second, it is in ordinals, and it is in Sanskrit ditiya. And then masculine ditiya, striling ditiya, and neuter ditiyam. Then number 3, it's in Sanskrit three, and it's in ordinals third, and it's in Sanskrit tritiya. Then masculine, in masculine it is tritiya, in feminine it is tritiya, and then it in neuter it is tritiyam. Then number 4, it is in Sanskrit chatur, and fourth in ordinals it is in Sanskrit chaturtha. Then in masculine chaturtha, feminine chaturthi, and then in neuter chaturtham. Then number 5, it's in Sanskrit panchan. In ordinals number 5th, it is in Sanskrit pancham, and in masculine panchamaha, in feminine panchami, and then neuter, in neuter it is panchamam. Then number 6, it is shash in Sanskrit, and number 6, which we say 6 in ordinals, in English it is shashta in Sanskrit, and in masculine it is shashtaha, in feminine shashti, and in neuter gender shashtam. Now 7, number 7, it is in Sanskrit shaptan, and when we say 7th, it is in Sanskrit saptam. In masculine it is saptamaha, in feminine saptami, and then neuter gender it is saptamam. Then number 8, it is astam in Sanskrit. When we say 8 in English it is astam in Sanskrit, and then in masculine astamaha, in feminine astami, and in neuter gender astamam. Then number 9, it is navam in Sanskrit, and when we say 9th, it is navam in Sanskrit. Then in masculine gender it is navamaha, in feminine it is navami, and in neuter gender navamam. Then number 10, it is in Sanskrit dasham. We say dasam in Sanskrit, and when we say 10th in case of ordinals, then it is in Sanskrit dasham, and in masculine gender it is dashamaha, in feminine gender dashami, and in neuter gender dasamam. This way you have to learn Sanskrit ordinals, and this way you have to also go ahead. And how do you say when we say 20 in English? When we say 20 in English, it is Vingshati in Sanskrit. In ordinals, when we say or write 28th, it is Vingsha or Vingshati tam. And it is in masculine gender Vingshaha or Vingshati tamaha. In feminine gender Vingshi or Vingshati tami. In neuter gender Vingshati mam or Vingsham or Vingshati mam. You have to say
This way in case of 20, 30, 40, etc. Hope you have got it. अब हम हिंदी में देखेंगे हम ऑर्डिनल्स में कैसे हम उच्चारण करते हैं और कैसे लिखते हैं संस्कृत में, तो वो हम देखेंगे। जैसे नंबर 2, दो संस्कृत में बोला जाता है द्वि, ऑर्डिनल्स द्वितीय, मैस्कुलिन में द्वितीय, फेमिनिन में द्वितीय एंड न्यूटर जेंडर में द्वितीयम। अब नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तीन, संस्कृत में बोला जाता है त्रि, और ऑर्डिनल्स में तृतीय, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर में कैसे बोला जाता है? तृतीय, तृतीय, तृतीयम। अब नंबर 4 मतलब चार, चार को संस्कृत में क्या बोला जाता है? चतुर, और ऑर्डिनल्स में चतुर्थ। अब मैस्कुलिन में क्या बोला जाता है? चतुर्थः, फेमिनिन में चतुर्थी एंड न्यूटर जेंडर में मतलब क्लीवलिंग में चतुर्थम। नंबर 5 पांच, हिंदी में जो जिसको पांच बोला जाता है संस्कृत में पंचन, ऑर्डिनल्स में पंचम, एंड मैस्कुलिन मतलब पुंगलिंग में पंचमः, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग में पंचमी एवं क्लीवलिंग में पंचमम। अब 6 नंबर 6 को हम हिंदी में 6 बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोला जाता है? षष्ठ, षष्ठ। ये ऑर्डिनल्स में कैसे इसका उच्चारण होता है और लिखा जाता है? षष्ठ। अब मैस्कुलिन मतलब पुंगलिंग में क्या कैसे बोला जाता है और लिखा जाता है? षष्ठः। फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग में षष्ठी और क्लीवलिंग में षष्ठम। अब आ जाए 7 में, 7 मतलब 7, 7 को संस्कृत में क्या बोला जाता है? सप्तम, ऑर्डिनल्स में सप्तम, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग में सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम, इस तरह बोला जाता है। अब नंबर 8 मतलब 8, हिंदी में 8 बोला जाता है, संस्कृत में अष्टम, अष्टम ऑर्डिनल्स में क्या हो जाता है? अष्टम। अब पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग में अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम, इस तरह बोला जाता है और लिखा जाता है। अब 9 मतलब 9 संस्कृत में कैसे बोला जाता है? नवम, ऑर्डिनल्स में नवम, ऑर्डिनल्स मतलब पूर्णवाचक, याद रखना, नवम। अब ये जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग में जैसे कैसे बोला जाता है? नवमः, नवमी, नवमम। अब 10 मतलब 10, इसको कैसे बोला जाता है? संस्कृत में दशम, ऑर्डिनल्स में दशम, और उसके बाद पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, क्लीवलिंग में कैसे बोला जाता है? दशमः, दशमी, दशमम। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। पर 20, 30, 40 ऐसे नंबर को हम कैसे संस्कृत में बोलेंगे या लिखेंगे? जैसे 20, एक उदाहरण हम दे रहे हैं इधर। 20 संस्कृत में बोला जाता है विंशति, ऑर्डिनल्स में 20th मतलब विंश और विंशतितम, और मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर मतलब पुंगलिंग, स्त्रीलिंग और क्लीवलिंग में कैसे बोला जाता है? पुंगलिंग में जैसे विंशः या विंशतितमः, कोई भी एक आप बोल सकते हैं। फेमिनिन में मतलब स्त्रीलिंग में विंशी या विंशतितमी, और क्लीवलिंग में विंशम या विंशतिमम। इस तरह ऑर्डिनल्स होता है और उसका 3 जेंडर्स जो है ये हम बोल दिए, ऐसे बोला जाता है और लिखा जाता है। अब मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। I hope you have got it very well. That's all for today, and please learn it very well, and please like, share and subscribe this video, and also press the bell icon. Thank you.